Controlling. Controlling is the process of taking steps to bring actual results and desired result actually together, according to Phillips Kotler. It is a process of measuring actual performance with standard performance. It is the immune system. Management starts with root, that is planning, and ends with fruits, that is controlling. Process of control. Setting standards. Measuring actual performance. Comparing standard with actuals. Finding variance. Taking corrective actions. Importance of controlling. Point number 1. Fulfilling organizational goals. Controlling function helps to measure the progress towards the organizational goals and points out the deviation, if any, and then suggests the corrective action towards the fulfillment of organizational goals. In this way, controlling helps to achieve the goals of organization. कंट्रोलिंग में प्रोग्रेस मेजर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ, और अगर कुछ डिविएशंस आते हैं तो वो बताए जाते हैं, और जब डिविएशंस हमको मिलेंगे तो उसके करेक्टिव एक्शंस लेकर हम गोल्स की तरफ जाते हैं। इस तरीके से कंट्रोलिंग जो है हमें ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स की तरफ ले जाता है। पॉइंट नंबर 2, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. A good control system helps management to verify the standards set are accurate or not. हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है हमारे काम का वो एक्यूरेट है कि नहीं. An efficient control system keeps a careful check on the changes taking place in the organization and helps to review the standards in the light of such changes. एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पर ध्यान रखेगा और हमेशा वो स्टैंडर्ड्स के साथ उसको कंपेयर करता रहेगा. Point number 3, efficient use of resources. By using control techniques, a manager helps to reduce wastage and spoilage of resources. This ensures that resources are used in most efficient and effective manner so as to achieve organizational goals. एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम रिसोर्सेज का वेस्टेज होने नहीं देगा. अब यहां पर रिसोर्सेज का मतलब हो जाता है मटेरियल, मैन पावर, मशीन. तो अगर रिसोर्सेज में वेस्टेज नहीं है तो एक एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे. पॉइंट नंबर 4, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. A good control system ensures that employees know well in advance what they are expected to do and what are the standard performance. Once the organizational objectives are achieved, then they are rewarded with monetary and non-monetary incentives which leads to increasing motivation. अब देखो कंट्रोल सिस्टम के अंदर अगर आप बात करें तो मोटिवेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एम्प्लॉय मोटिवेट कब होंगे? जब उनको मॉनिटरी बेनिफिट्स और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलेगा. तो यहां पर अगर एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम है तो एम्प्लॉइज को पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड्स क्या है एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू. वो टारगेट्स अचीव करेंगे और जैसे ही वो टारगेट्स अचीव करते हैं उनको मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे मोटिवेशन आ जाएगी उनमें. Point number 5, ensures order and discipline. Controlling function brings about order and discipline in an organization. It helps reduce the bad behavior on the part of employees. Under this system, regular check is done by authorities concerned and preventive actions are taken to avoid any deviations in already set targets. The primary aim is to achieve target. बोलते ना, जो मेन एम है वो टारगेट अचीव करने का है.
तो प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम के वजह से ऑर्डर आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, एम्प्लॉइज का बैड बिहेवियर जो है वो चेक किया जाएगा और अथॉरिटीज ध्यान रखेगी कि भाई कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है, मतलब लोग टारगेट पे काम कर रहे हैं और टारगेट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, facilitates coordination. All the departments of the organization are interdependent on each other. हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट के हेड्स है उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो डिविएशंस आएंगे नहीं। तो यहां पर दिया है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट कैन हेल्प टू फाइंड आउट एनी डिविएशन इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एंड यूज द रेमेडियल मेजर्स सो द डिजायर्ड रिजल्ट कैन बी अचीव्ड। अब ये यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर कोई डिविएशन चल रहा है क्या, वो भी चेक किया जाएगा। जैसे कि डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, डिपार्टमेंट्स के हेड जुड़े हुए हैं, तो हर डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट में चेक करेगा कि भाई कोई डिविएशन है क्या, और अगर डिविएशन है तो उसके लिए इलाज ढूंढा जाएगा और टारगेट्स की तरफ बढ़ा जाएगा। Point number 7, psychological pressure. Control process puts a psychological pressure on individual to perform better. Their performance is evaluated with the target set for them. Everyone is likely to put on their best performance as they are aware that it will be evaluated. They may also have a pressure to achieve the results according to the standard fixed for them. कंट्रोल प्रोसेस के अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा इंडिविजुअल पे कि वो अच्छा परफॉर्म करे। स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, टारगेट दिए जाते हैं एम्प्लॉइज को कि भाई इतना टारगेट अचीव करना ही है, इतना काम करना ही है, ये लेवल तक पहुंचना ही है। तो एम्प्लॉइज साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहेंगे और इस प्रेशर की वजह से उनमें मोटिवेशन रहेगा और इस मोटिवेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे। पॉइंट नंबर 8, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. Proper control ensures organizational efficiency and effectiveness. Factor of control like making managers responsible, motivating them for higher performance and achieving coordination in their performance. An organization is effective if it is able to achieve its desired objective. Organization का सक्सेस मेजर होगा अगर वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है। तो मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल बना देना, एम्प्लॉयज को कुछ चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हर इंसान अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा। और जब हर एक इंसान, एक एम्प्लॉय, एक मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो जाएंगे। Point number 9, corporate image. This function helps to improve the overall performance of the organization. Progress in the business is measured in terms of planned standards and actual performance. If there is a deviation, then corrective measures are applied and desired results can be achieved. This builds a corporate image and builds goodwill for the business. अब यहाँ पर स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन हमारा जरूरी है। अगर हम हमारे स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में बैलेंस मेंटेन करते हैं, हमारे परफॉर्मेंस में डिविएशन ज्यादा नहीं हो रहा है, हम डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर रहे हैं, तो हमारा इमेज जो है, हमारा कॉर्पोरेट इमेज जो है वो बन जाएगा, हमारा रेपुटेशन बन जाएगा और हम एक अच्छा स्टैंडर्ड बिजनेस कर सकेंगे। Point number 10, managerial ability. Manager responsibility is created through assignments of activities to various individuals. अब मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई एम्प्लॉय को अपना अपना काम दे दो, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। This process starts at the top level and goes to the lower level.
A manager assigns some activities to his subordinate and controls them. मैनेजर का सिर्फ जिम्मेदारी है कंट्रोल करना और सिर्फ देखना जो काम दिया है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं ऑन टाइम।